Good morning, everyone. In last class, we studied about what is PDA and why PDA is needed, where the finite state machine got failed, and from where the role of PDA starts. So in this class, we are going to learn few more things about PDA, and then we'll move on towards the problems related to PDA. So if we want to verify the validity of a string, or if we want to construct a PDA, there are two ways by which we can construct a PDA. First one is by reaching to one of the final states, जैसा कि हम finite state machine में करते थे. तो हम किसी भी एक final state पर अगर पहुंचते हैं string को पढ़ने के बाद, then we can declare that yes, that string is valid or not. And another method is by making stack empty. That means when we read the complete string, the stack which we are using becomes empty. If it becomes empty, that means our string is valid and our PDA has been constructed. So these are the two methods. Both the methods have equal power. For both the methods can be used for making any PDA of any language sets. But practically, we are going to use the second one approach, that is by making stack empty, because it is easier to construct PDA by that method, by making stack empty. Another thing is that when we are going to design PDA, like finite state machine, we will encounter two kinds of PDA, that is deterministic PDA, DPDA, and NPDA, that is non-deterministic pushdown automata. The difference is same. In the deterministic pushdown automata, for a single set of input from one state, you will have a definite output. That means you will move towards a definite state and you will have a definite output. But in NPDA, there will be more than one output for a single set of input. So the difference is same. We'll discuss NPDA in later classes. Now, for now, we will start with a problem that is L is equals to 0 to the power n, 1 to the power n, where n is greater than or equals to 1. We will design its PDA and write down its transition rules. So first of all, we construct PDA in 3 steps. First step is that we have to decide what language this question is producing. Okay, what language set this L is generating. So it is generating this kind of language set in which strings like 01, 0011 and 00011 and so on are coming. यहाँ पर जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं फॉलोड बाय उतने ही नंबर ऑफ वंस आएंगे, कभी भी 1 के बाद 0 नहीं आएगा. तो पहला स्टेप तो ये है that you have to analyze what strings are being formed by the language set. The second step is to form the logic. So logic आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें हम, क्या स्टैक में पुश करें, क्या पॉप करें इस स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए, ताकि हम जितने जीरोस हैं उतने ही वंस रीड कर पाए. तो हम क्या करेंगे, we will decide the logic like this, that for every 0 we will push 1 x into the stack. Now here in place of x you can push anything, y, z, a, b. In fact, in respect to 0 you can push 0 also. It is up to the designer that what stack symbol he has to push or pop from the stack. So यहाँ पर मैंने लॉजिक ये बनाया that for every 0 we will push 1x into the stack and for every 1 we will pop 1x from the stack. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको. जैसे मैंने सैंपल के लिए 00011 एक स्ट्रिंग ली, इनपुट स्ट्रिंग. अब बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे ही स्टैक को इनिशियलाइज किया, z0 जो है वो उसमें बाय डिफॉल्ट रहेगा. मैंने रूल बनाया है कि फॉर एवरी 0 there we have to push 1x into the stack. So this is the first 0 and for this 0 we have pushed first x into the stack. Now second 0, for second 0 we will push another x into the stack. So now stack is having 2x in it. Now for third 0 we will again push x into the stack. So now our stack is having 3x. Now for the very first time we got 1 in our input string.
So we have decided the logic that for every one we will pop one x from the stack. So now जैसे ही पहला वन आया हम क्या करेंगे, हम इस x को पॉप कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही दूसरा वन आएगा मैं क्या करूंगा, दूसरे x को भी पॉप कर दूंगा। सिमिलरली जैसे ही थर्ड वन आएगा तो मैं क्या करूंगा, तीसरे x को भी पॉप कर दूंगा। जितने x है उतने ही वन होंगे बाय डिफॉल्ट। तो अब जैसे ही स्ट्रिंग खत्म होगी तो मैं z0 को भी स्टैक से बाहर कर दूंगा, एंड इन दिस वे माय स्टैक विल बिकम एम्प्टी। और जैसे ही मेरी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी मैं समझ जाऊंगा मेरा पीडीए डन हो गया है। So once you have created the logic, you have assumed the logic. Now what you have to do? Now you just have to write the transition rules. Now these transition rules can be written like this. In this first transition rule, what is happening? That हम सबसे पहले Q0 स्टेट पर है और हमें 0 इनपुट मिला और Z0 स्टैक टॉप पे है। तो मुझे करना क्या था, मैंने रूल बनाया, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे कोई इनपुट आया, नया इनपुट आया, मैं बीइंग ऑन सेफर साइड में क्या करूंगा, स्टेट चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर पहले Q0 पर था और अब मैंने स्टेट चेंज करके कहाँ आ गया, Q1 पे आ गया। और मैंने लॉजिक ये बनाया है कि जब भी 0 आए इनपुट में आपको x पुश करना है, तो मैंने ये देखिए x पुश कर दिया। ना लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी चीज आपको पुश करनी है वो आप आगे लिखते हैं, तो हमने x को आगे लिखा और लास्ट में आप जो लास्ट वाला स्टैक सिंबल है उसे कॉपी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला स्टैक सिंबल जो है वो स्टैक टॉप के ऊपर जाकर ओवरराइट होता है एंड देन पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसीलिए हमें स्टैक टॉप का लास्ट सिंबल यहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नाउ सेकेंड स्टेप में हम Q1 पे हैं, हमें अगेन 0 मिलेगा और स्टैक टॉप पे x रहेगा क्योंकि एक x हम पुश कर चुके हैं। तो हमें करना क्या है, हम Q1 पे ही रहेंगे क्योंकि कोई नया इनपुट तो मिला नहीं, हमें 0 ही मिला, जो कि अभी इससे पहले भी 0 ही मिला था। जब नया इनपुट आएगा तब स्टेट चेंज करेंगे। तो हमने जो Q1 है वो यहाँ पर भी Q1 ही रखा, हमने एक x को पुश किया। अब बाय रूल मैंने क्या लिखा था कि लास्ट वाला स्टैक सिंबल पीछे लिखना होता है, तो मैंने लास्ट वाला स्टैक सिंबल यहाँ पीछे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में हम कहा होंगे, Q1 पे होंगे। तो ठीक है, मैं इस तरीके से अगर लिखना चाहूं इसको कि मैं लेट्स से Q1 पे हूं और इनपुट में मुझे आया थर्ड 0, ठीक है, और स्टैक टॉप पे आया मुझे x। तो मुझे करना क्या चाहिए, बाय रूल मुझे ये करना चाहिए कि मैं Q1 पे ही रहूं क्योंकि कोई नया इनपुट तो आया नहीं है, 0 ही रिपीट हो रहा बार बार। तो मैं Q1 पे ही रहूं और मैं पुश करूं x को, क्योंकि 0 आता है तो मुझे x पुश करना है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इस लास्ट वाला स्टैक सिंबल मतलब इस वाले स्टैक सिंबल को यहाँ कॉपी कर दूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली स्टेप इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस, ये दोनों स्टेप बिल्कुल सिमिलर है। तो हम बार बार एक ही स्टेप को नहीं लिखेंगे, हम एक ही स्टेप से काम चलाएंगे। इसी स्टेप को चाहे 0 एक बार आए, 10 बार आए या 1000 टाइम्स आए, इसी स्टेप को 1000 टाइम्स पढ़कर वो x को पुश करता रहेगा। नाउ कभी ना कभी स्टैक में कभी ना कभी इनपुट में 1 आएगा। व्हाट विल हैपन इन दैट केस, जैसे ही 1 आया तो आप उस समय Q1 स्टेट पर थे और इनपुट पे आपको 1 मिला और स्टैक टॉप पे ऑब्वियसली x होगा क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आपने x को पुश किया था। तो यहाँ पर जैसे 3 0 आए हैं तो मैंने 3x को पुश किया था, ये लीजिए मैंने 3x पुश कर। अब पहली बार जैसे ही 1 आया तो इनपुट चेंज हुआ है, नया इनपुट आया है, क्या आया है 1, अभी तक आ रहा था 0। तो जैसे ही नया इनपुट आया मैंने आपको बोला है Q1 से स्टेट चेंज करके कहाँ पहुंच जाइए, किसी और स्टेट Q2, ठीक है। अब पॉप करना है मुझे, मैंने रूल लिखा था कि फॉर एवरी वन वी हैव टू पॉप 1x। तो पॉप करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप लिखते हैं एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जाकर इस x के ऊपर ओवरराइट होता है, जिसकी वजह से ये x जो है यहां से पॉप हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल रीच टू स्टेट Q2, और Q2 में अगर फिर से 1 आता है और स्टैक टॉप पे x है तो आप फिर वही करेंगे, स्टेट चेंज नहीं करेंगे, Q2 पर रहेंगे और फिर पॉप कर देंगे। तो आप नेक्स्ट बार में आपका दूसरा x भी पॉप हो जाएगा, तो आपने इस x को भी पॉप कर दिया। अगले स्टेप में
फिर वही काम होगा Q2 1x, और आप Q2 एप्सिलॉन करके पॉप करेंगे। तो फिर वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बार बार एक ही स्टेप को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। अगर एक स्टेट से काम चल रहा है तो मैं एक ही रूल से काम चल रहा है तो रूल को तो हम एक बार पढ़ेंगे, और चाहे तो 10x आ जाए हम 10x को पॉप कर लेंगे। लास्टली होगा क्या कि जब पूरे 0 और पूरे 1 हम पढ़ लिए और सारे x पॉप हो गए, ठीक है, तो क्या बचेगा स्टैक में Z0, और इनपुट में क्या बचेगा, नथिंग, एप्सिलॉन। तो अब अगली स्टेप आप देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने। मैंने यहाँ लिखा Q2 एप्सिलॉन Z0। नाउ Q2 एप्सिलॉन Z0 मतलब हम स्टेट Q2 पर हैं, और एप्सिलॉन का मतलब कि स्ट्रिंग हो गई खत्म, नल स्ट्रिंग है ना, अब नल आ गया है मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई, और स्टैक पे है Z0। तो आपको करना क्या है, एप्सिलॉन पहली बार आया है तो Q2 से आप कहाँ चले जाएं, एक नई स्टेट Q3 पर, और उस Z0 को भी एप्सिलॉन लिखकर यहाँ से पॉप आउट कर दें। तो आपका ये Z0 भी यहाँ से पॉप हो गया। अब अगर लास्ट आप रूल लास्ट स्टेप देखें, वहां मैंने लिखा है Q3 एप्सिलॉन एप्सिलॉन। सो Q3 इज आवर फाइनल स्टेट, इनपुट खत्म हो चुका है, स्टैक एम्प्टी हो चुकी है, दैट मीन्स हमारा पीडीए बन गया है। So this is the method by which we will design a PDA or write its transition rules. So this is the PDA for L is equals to 0 to the power n, 1 to the power n. I hope you understood this thing. Now, if we have to design, if we have to draw its transition diagram, how we will do it? We will simply see that how many states are there. यहाँ पर Q0, Q1, Q2, Q3 यानी 4 स्टेट हैं। तो I will make Q0, Q1, Q2, Q3 4 स्टेट्स बनाई मैंने। उसके बाद Q0 इनिशियल है क्योंकि मैं Q0 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q0 से देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, Q0 में 0Z0 दिया, तो आपने यहाँ पर क्या किया था, X पुश किया था। तो वहां पर देखिए ध्यान से, मैं आई एम अंडरलाइनिंग दीज थिंग्स। मैंने यहाँ पर मेरे को आया 0 और Z0, तो मैंने किया क्या, XZ0 मतलब X को पुश किया। तो अब ध्यान से देखिए, ट्रांजिशन डायग्राम में मैंने यही चीज लिखी है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0Z0 मतलब मुझे इनपुट में आया है 0 और Z0 Q0 को, तो मैं क्या करूंगा, XZ0 वहां पर पुश स्टैक में ऑपरेशन करूंगा, और Q0 से कहां चला जाऊंगा, Q1 पर। सिमिलरली Q1 की बात करूं तो Q1 में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, Q1 में अगर आपको, जस्ट अ सेकेंड, Q1 में आप देखिए तो आपको 0 और X आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक X को पुश करते हैं और लास्ट में लास्ट स्टैक सिंबल लगता है। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ, यू कैन राइट अदर ट्रांजिशन ऑल्सो, और लास्ट में फाइनल स्टेट तो Q3 है ही है जैसा कि मैंने बताया था, तो मैं Q3 को फाइनल बना। So it is very easy to draw transition diagram by seeing the transition rules of any PDA. These are the transition rules. By seeing these transition rules, we can easily make its transition diagram. I hope you understood this concept of writing transition rules and transition diagram. And one more thing is there, that if we have to check the validity of strings with the help of PDA, suppose you have got a PDA and you got a string and you have been told that to please check the validity of this string, that whether it is valid or not. So what you will do, you will start with from initial state, that is Q0. You will write down whole string and you will write down here what, initial stack symbol. Now this symbol is called as moves. This is what it is called as. It is called as moves. Means by reading this input set, what move you are going to perform. Okay. So this is moves. अब जैसे ही मैंने Q0 पढ़ा, इनपुट पे सबसे पहले मैंने 0 पढ़ा और Z0 पढ़ा, तो मैं देखूंगा यहाँ पर Q0 0 Z0 से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्टैक में क्या कर देता हूँ, X को पुश कर देता हूँ और Q1 पे चला जाता हूँ। तो आप यहाँ देखिए मैं कहाँ आ गया, Q1 पे। ये 0 मैं पढ़ चुका हूँ तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो अब मेरी स्ट्रिंग कितनी बची, 0 0 और 1 और यहाँ पर स्टैक की कंडीशन देखें तो यहाँ एक X पुश हो चुका है। अब अगली स्टेप देखते हैं, Q1 0 X, तो Q1 पे हूं मैं, 0 और X मिला, तो देखिए 0 और X यहाँ पर मिल रहा है, मैं क्या करता हूँ, उसी Q1 पे ही रहता हूँ और एक X को पुश कर देता हूँ। तो अब आप देखिए Q1 पे ही हूं मैं,
सिंस आई हैव रेड दिस जीरो, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगले स्टेप में देखिए 011 बचा और मैंने एक एक्स को और पुश कर दिया। ठीक है, देन व्हाट विल डू इन नेक्स्ट स्टेप्स। अब क्या आया मेरे पास, Q1 0 x। तो अगेन आई विल रीड द सेम ट्रांजिशन कि Q1 पे हूं मैं और 0x मिला, तो मुझे क्या करना है, XX। ओके, Q1 पे ही रहूंगा मैं, तो मैं Q1 पे ही रहा। ये जीरो सिंस मैं पढ़ चुका हूं तो डिलीट कर दूंगा, तो अब मेरे पास बचेगा 111 और स्टैक में मैंने एक एक्स को और पुश कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, Q1 1x आया, तो Q1 को 1x आता है तो आप क्या करते हो, पॉप ऑपरेशन करते हो और Q2 पे चले जाते हो। तो आप Q1 से देखिए यहाँ पर मैं कहाँ पे आ गया, Q2 पर। सिंस दिस वन हैज बीन रेड, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अब दो वन बचेंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे ही एक एक्स को पॉप किया तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और अब बचेगा सिर्फ 2x। सिमिलरली अगेन Q2 1x, फिर से मैं Q2 1x पढ़ूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q2 में अगर 1x पढ़ता हूँ तो मुझे पॉप करना है और वापस Q2 पे ही जाना है। तो मैं Q2 पर ही रहा, इस वन को मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब सिंगल वन बचा और इस x को भी मैंने पॉप कर दिया, तो अब मेरे पास सिर्फ एक x और z0 बचा। Q2 1x, अगेन द सेम ट्रांजिशन, Q2 1x। तो Q2 1x मैं पढ़ूंगा और मैं करूंगा क्या, Q2 पर ही जाऊंगा और एप्सिलॉन यानी एक पॉप और कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर इस x को भी मैंने यहाँ से पॉप कर दिया, तो अब बचा सिर्फ Z0। Q2 का Q2 पे ही रहा। ये वन जब मैंने पढ़ लिया तो इसको भी डिलीट करूंगा, तो अब स्ट्रिंग बचेगी क्या, नल, कुछ नहीं। तो Q2 एप्सिलॉन Z0 के लिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ देखिए Q2 में एप्सिलॉन Z0 जब आए तो आपको पॉप करना है और Q3 पे चले जाना है। तो मैं यहाँ आया Q3 पर और पॉप कर दिया मैंने, तो अब स्टैक भी एम्प्टी, स्ट्रिंग भी फिनिश्ड। नाउ आई हैव रीच्ड टू द final state. So this is the method by which we can check the validity of string also, and I have told you how to make a PDA. Thank you so much.